Good afternoon, all of you. So today we have finished with the start of the command task practice. We have finished with some students of each group. Monday we'll be doing others. Please remember the basics so I've taught you. In between I'll keep asking questions. And we also had a lecture practice today. We've all finished. Some of you performed fine. Some of you need to pull up your socks. Right? So you have Sunday coming up tomorrow. Please practice in your rooms. इनको आज give them more topics. They want more topics. Yeah, one more topics. Okay. So we'll have this small presentation of tie and the cup. And today we have with us one of our EMA students, Surjo Rai. Okay, he belongs to Ghaziabad and uh, he has cracked his SSB on 7 December from 1 AFSB Dehradun. He was student of EMA's 50 batch, almost I think 8-9 months back, 10 months back, right? And but he worked hard, continues in touch along with the job which he's doing, and finally success touched his feet, and this was his last attempt, right? So when you have such a hard journey, difficult journey, then the success is also very sweet. And to celebrate that success, he's got a lot of sweets. But I'll only distribute sweets once you note down points. Okay, so note down that you are going to listen to Surjo Roy of SSB, AFSB, 1 AFSB Dehradun. Keep in mind, and then write down what points, what important things he performed in his journey to success. That is what we have to learn, right? The fact that we are spending 10 minutes to interact with our successful students is to learn what they did. Some of it may be useful to us, may not be everything, but some of it can be useful to us. So those pearls of wisdom we will conserve for ourselves. We'll keep it for ourselves. सबको समझ में आ रही मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? Okay. So firstly, Sujo, heartiest congratulations and well done. And first accept the tie, and then we'll listen to your points. Where is his name? 786. Okay, that's auspicious number. For some in some religions it is, for Muslim religions it's a very auspicious number. Right? Don't matter. It's auspicious number for everyone. So just take us through your journey of SSB, right? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्क्रीनिंग से शुरू करते हैं। जब स्क्रीनिंग होती है सो मैं टोटल 4 मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं और इन एवरी टाइम आई गॉट स्क्रीन इन। तो मैंने एवरी टाइम कॉन्फ्रेंस देखा है। तो स्क्रीन इन की मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है कि स्टोरी अच्छी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, प्रोग्रेसिव बनाओ और डिस्कशन में इट इज़ अ की पॉइंट कि डिस्कस करो तो अच्छे से करो, पॉजिटिव करो और दूसरों की बातें सुनो। सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं होता, दूसरों की बातें सुननी होती है और एक प्रोग्रेसिव स्टोरी पर पहुंचना होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्क्रीनिंग। और OIR तो हमें पता ही है कि यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और नेट पर भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। तो OIR तो सॉर्टेड होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर आई गॉट स्क्रीन इन तो AFSB में शाम को ही होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में क्या रहता है कि यहाँ पर जितनी भी आपको स्टोरीज दिखाई जाएंगी, 60 to 70 पिक्चर्स आपको बताई जाएंगी, उसकी रिलेटेबल थीम्स भी दी जाएंगी और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी मैं कोचिंग ले करके उसके बाद मैं इमास में आया था, बट सर ने मुझे पहले ही क्लास में कहा था कि पिछला जितना भी सीखा है वो भूल जाओ और जो अभी सीख रहे हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो, उसके ऊपर काम करो। तो मेरी यही सजेशन रहेगा आप सबसे कि पिछला आपने कहीं से भी अगर कोचिंग ली हो उसको पहले आप भूलिए, उसके बाद इमास की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करिए। राइट। तो ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो जर्नी जो होगी वो आसान हो जाएगी। इसके बाद साइक में कंप्लीट ऑल द जितने भी आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मिलते हैं उसको कंप्लीट करिए। SRTs में मैं सिर्फ और सिर्फ 42 या 43 SRTs कर पाया था, विच इज़ अ सफिशिएंट नंबर आई थिंक। यस। एंड बाकी साइकोलॉजी, अगर आप हार्ड साइकोलॉजी और इंटरव्यू में क्या होता है, साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू इज सेल्फ डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप इंटरव्यू को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है ग्राउंड टास्क एंड GTO में। मेरा जो पिछला अटेम्प्ट था मध्य प्रदेश भोपाल जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उसमें, और इस वाले अटेम्प्ट में जिसमें कॉन्फ्रेंस इन हुआ, इसमें मेरी बस 2 डिफरेंट मैंने चीज़ की थी GTO में कि सबसे पहला ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बॉन्डिंग होती है ग्रुप के साथ, ये एक्सेसर को ऑन ग्राउंड नहीं दिखती है। ऑन ग्राउंड तो दिखती है बट ये बॉन्डिंग जो बनती है वो ऑफ द ग्राउंड बनती है। और ऑफ द ग्राउंड बॉन्डिंग कैसे बनेगी? अपने ग्रुप के साथ खेल कर। ठीक है।
ठीक है, तो सर बता चुके हैं कि ऑफ द ग्राउंड बॉन्डिंग बनाना, अपनी प्लेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीटीओ में जब हम ग्राउंड टास्क करते हैं, पिछले अटेम्प्ट में हम आपने पढ़ा होगा कि ग्राउंड टास्क में रोल्स होते हैं हर एक इंसान की, जैसे लीडरशिप रोल होता है, सपोर्टिंग रोल होता है, हिंड्रेंस मेकर वाला रोल होता है। तो पिछले अटेम्प्ट में भी मैं लीडरशिप रोल में तो था, बट जो मेरे ग्रुप के बंदे थे जो लाइन अक्रॉस द लाइन खड़े हुए थे, मैं उनके आइडियाज को सुन करके इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। इस बार मैंने ये स्ट्रैटेजी चेंज करी कि लीडरशिप रोल में तो रहो, आप ऑब्स्टिकल के ऊपर खड़े हो, बट आपकी जो टीम है उसका आइडिया सुनो, उनकी जो व्यूज है उसको सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर बनाओगे अपने जीटीओ में तो यू विल श्योरली सक्सीड। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सर यस, इंटरव्यू में अगर मैं पर्टिकुलरली एयरफोर्स की बात करता हूँ या आर्मी की बात करता हूँ, बिकॉज आई हैव फेस्ड आर्मी एज वेल एज एयरफोर्स, तो यहाँ पर आपको CIQ क्वेश्चंस मिलते हैं, PIQ में आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से फॉलोअप क्वेश्चंस बनने होते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि ईच एंड एवरी थिंग अबाउट योर लाइफ दैट यू हैव डन, ऐसा क्यों किया, अगर ये किया तो क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ईच एंड एवरी थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, अपनी फैमिली से लेकर के, अपनी एजुकेशन से लेकर के काम करो इस चीज़ के ऊपर। अपने ऊपर ही तो काम करना है, सोचना ही तो है, सोचो, एवरीथिंग सोचो और उसका रीज़न ढूंढो कि ऐसा मैंने किया तो क्यों किया। थोड़ा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो हर चीज़ का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें होती हैं। और एयरफोर्स के इंटरव्यू में मेरे से यही पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा सवाल थे। माई इंटरव्यू वेंट अराउंड 1 hour 10 minutes। तो उसके बाद काफ़ी लोगों से मतलब जनरल When you reached home, what did your mother tell? सो तो व्हेन आई रीच्ड होम आफ्टर आई गॉट रिकमेंडेड, पहले ही तो मैंने मदर से बात कर ली थी कि मैंने बता दिया था आई गॉट रिकमेंडेड, बट मैं जब रात को पहुंचा तो मम्मी ने पहले मुझे हक किया, उसके बाद शी क्राइड एंड माई मदर सेड कि तूने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो यही चीज़ है, आप मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन ज़रूर आपका गोल जो है, आप जो अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, वो ज़रूर आप कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। See, I want to tell you, he is a self-made man. A self-made man. One example, because I relate a lot, with him. He lost his father when he was very young. 7 years? 7 years, right? So his mother brought him up. There are two brothers. And then he made an own choice of joining the defense forces, worked hard, faced failures, came back, sprung back, and then today is standing so proudly in front of you, sharing his sweets with all of you. That shows his love and passion, right, for the services as well as for this alma mater where he studied somewhere in January, I think. January, February, you must have done the course, right? He's come after 10, 11 months, yet he's attached, right? Because maybe he thought that at every stage when he needed some clarity, he got it, right? So please work hard. Yes, success doesn't come sometimes so easily, but don't give up, and success will come. Okay. So with this, thank you so much, Sergio, and monitors, please distribute the